Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 15th lecture in the lecture series of Geomorphology, in which we are going to talk about the formation of the continents and the oceans. And we will be talking about the most accepted theory, that is the plate tectonic theory. In the previous videos, we have talked about the continental drift theory and the sea spreading theory. But due to some limitations, both the theories were rejected. And now the most accepted theory is the plate tectonic theory, because most of the phenomena that are taking place on the earth can be explained by this theory. And guys, we will be talking about the convergent, divergent and the conservative margin between the oceanic and the continental plates. Then we will be talking about the minor and the major plate tectonics of the earth. But before that, you have to write down the answer of some questions in the comment section. Guys, please write down the 3 evidences of the drift theory and write down the 3 limitations also. Why the age of rocks at ridges is much less than the age of rocks that are present at the trenches. If you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, you can watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. Let's talk about the plate tectonic theory, which was being given by the Morgan and his team. Guys, we have already discussed about the continental drift theory and the sea spreading theory. The continental drift theory was given by the F.B. Taylor. बट गाइज हुआ क्या कि 1909 में F.B. टेलर ने थ्योरी दी, लेकिन बाद में उसके एविडेंसेस कलेक्ट किए गए एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज गिवन बाय द एल्फ्रेड वेगनर। सो गाइज, अगर आपको ऑप्शन में एल्फ्रेड वेगनर दिखे तो आप उसको आराम से ऑप्ट कर सकते हैं। एंड गाइज, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको F.B. टेलर और एल्फ्रेड वेगनर दोनों ऑप्शंस में मिले, सो यू कैन गो फॉर एल्फ्रेड वेगनर। And the sea spreading theory is being given by the Henry H. लेकिन जैसा कि हमें पता है कि कुछ limitations के कारण दोनों theories reject हो गई थी, एंड उसके बाद एक modified version आया इन दोनों theories को यूज करके, जिसे बोला गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एंड गाइज, इस थ्योरी को यूज करके हम लोग सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, इवन की अर्थक्वेक की डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्केनोस की डिस्ट्रीब्यूशन, माउंटेन्स की फॉर्मेशन एंड अ लॉट मोर। सो गाइज, बेसिकली हर एक थ्योरी का कुछ ना कुछ बेसिस होता है। जैसे कि हमने देखा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का था कि क्यों क्लाइमेट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर सेम होता है। उसके बाद सी स्प्रेडिंग का था एज ऑफ द रॉक्स एट द रिजेस एंड द ट्रेंचेस। वैसे ही इस थ्योरी का बेसिस है ओरोजिनी। ओरोजिनी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, कि कैसे माउंटेन्स बनते हैं, किन फैक्टर्स पर उनकी फॉर्मेशन डिपेंड करती है एंड कितने टाइप के हमारे माउंटेन्स होते हैं। Guys, we will be talking about the mountains in much detail in the next video. So guys, in this video, we will be talking about the structure of the earth. आखिर structure कैसे बनता है, कैसे continents बनते हैं and कैसे बनते हैं हमारे oceans. So guys, हमने internal structure of earth वाले lecture में देखा था कि कैसे इनर पार्ट ऑफ द अर्थ को कोर बोला जाता है, जो कि सराउंडेड है मेंटल से, एंड जिस पार्ट पर हम लोग रहते हैं उसे बोला जाता है क्रस्ट। तो हमारे कोर के 2 पार्ट से, एक था इनर पार्ट एंड एक था आउटर पार्ट। इनर पार्ट था सॉलिड एंड आउटर पार्ट था लिक्विड। ऐसे ही हमारा अपर मेंटल था एंड था लोअर मेंटल। अपर मेंटल में एक प्लाज्मा की लेयर प्रेजेंट थी जिसे बोला जाता है एस्थेनोस्फेयर, एंड दैट इज मेड अप ऑफ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड। मतलब ना तो वो सॉलिड है ना ही लिक्विड, लेकिन उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड की हैं तो कुछ हैं उनमें लिक्विड की। उसके बाद आता है हमारा क्रस्ट, जिसे हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशनिक क्रस्ट। तो गाइस, बेसिकली अगर हम लोग क्रस्ट को लें एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल को लें, जो कि एक एस्थेनोस्फेयर पर फ्लोट करती है, तो उसे बोला जाता है लिथोस्फेरिक स्लैब। सो गाइज, अगर हम लोग क्रस्ट को और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल को कंबाइंड एक नेम देने की कोशिश करें तो उसे बोला जाता है लिथोस्फेरिक स्लैब, एंड उसका दूसरा नाम है प्लेट टेक्टोनिक।
सो गाइस, इससे क्लियर होता है कि क्यों हमारी इस थ्योरी का नाम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, क्योंकि ये बेसिकली यूज कर रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स को एंड इसने बताया कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं जो हमारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस की फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। तो गाइस, हमने देखा कि क्रस्ट को और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल को हमने कंबाइंड फॉर्म में बोला प्लेट टेक्टोनिक एंड वो फ्लोट कर रही है एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर पर, दैट इज द प्लाज्मा, एंड जिसे बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर, एंड इट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द मेंटल ऑफ द अर्थ। सो गाइस, बेसिकली दो प्लेट्स होती हैं, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट तो दूसरी होती है ओशनिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट बनी होती है ग्रेनाइट की एंड ओशनिक प्लेट बनी होती है बेसॉल्ट की। तो गाइस, ये बहुत कॉमन सी चीज है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट आप किसको बोलोगे? जिस प्लेट का मैक्सिमम एरिया हमारा कॉन्टिनेंट बना रहा है, ऐसी प्लेट को कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे। जिस प्लेट का मैक्सिमम पार्ट ओशियन बना रहा है, ऐसी प्लेट को ओशनिक प्लेट बोलेंगे। एंड उनके बिटवीन क्या होता है कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो बनी होती है ग्रेनाइट की, जो कि बहुत ही लाइट वेट होता है। लेकिन गाइस, कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है एंड डेंसिटी होती है बहुत कम। लेकिन इन द कॉन्ट्ररी हमारी ओशनिक प्लेट बनी होती है बेसॉल्ट की, इसलिए ये बहुत ही हैवी होती है। इसका वॉल्यूम कम होता है लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ओशनिक प्लेट इज मच हैवियर देन द कॉन्टिनेंटल प्लेट। सो कॉन्टिनेंटल प्लेट का मैक्सिमम पार्ट बना रहा है कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक प्लेट का मैक्सिमम जो पार्ट है वो बनाता है हमारा ओशियन। नाउ गाइस, कमिंग टू द कन्वेयर बेल्ट थ्योरी। जैसा कि हमने सी स्प्रेडिंग थ्योरी वाले लेक्चर में भी देखा था कि कन्वेयर बेल्ट थ्योरी बेसिकली ये बताता है कि अगर एक जगह पर हमारी अर्थ की क्रस्ट बन रही है तो बेसिकली दूसरी जगह पर वो खत्म भी होती है, जिसकी वजह से हमारा टोटल सरफेस ऑफ एरिया हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन फिर भी सी स्प्रेडिंग होती रहती है, क्योंकि वो अगर एक जगह पर बनती है तो दूसरी जगह पर वो हो जाती है डिस्ट्रॉय। बेसिकली रिजेस पर हमारी सी फ्लोर स्प्रेड होती है एंड ट्रेंचेस पर वो आकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो अगर आपको इस प्रोसेस के बारे में जानना है देन प्लीज वॉच माय वीडियो ऑन द सी स्प्रेडिंग थ्योरी। सो गाइज, अभी हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द मार्जिन्स में। गाइज, अगर दो चीजें हैं उनमें कोई ना कोई रिलेशन तो होता ही है। ऐसे ही अगर दो प्लेट्स क्लोज आएंगी तो उन्हें बोला जाएगा कि वो कन्वर्ज कर रही हैं। कन्वर्ज का मतलब पास आना, तो उसे बेसिकली बोला जाता है कन्वर्जेंट मार्जिन, जहां पर दो प्लेट्स आपस में क्लोज आ रही हो। लेकिन ऐसी मार्जिन जो कि बने दो प्लेट्स के दूर जाने पे, मतलब दो प्लेट्स वहां पर डाइवर्ज हो रही हैं, तो ऐसी मार्जिन को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट मार्जिन। लेकिन अगर तो वो प्लेट्स बेसिकली एक दूसरे को रब करते हुए आगे निकल जा रही हैं तो ऐसी मार्जिन को बोला जाता है कंजर्वेटिव मार्जिन। तो बेसिकली कन्वर्जेंट मार्जिन में दो प्लेट्स पास आ रही हैं, डाइवर्जेंट में दूर जा रही हैं एंड कंजर्वेटिव में उनमें डिस्टेंस सेम रहता है। तो गाइज, ये बेसिकली मार्जिन बन किन में सकता है? दो ओशनिक प्लेट्स के बीच में बन सकता है, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में बन सकता है एंड बन सकता है एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के बारे में। क्योंकि इन डेफिनेशन में बेसिकली गाइज ना तो ओशनिक प्लेट लिखा गया है और ना ही लिखा गया है कॉन्टिनेंटल प्लेट। सो बेसिकली प्लेट होनी चाहिए, अगर वो दूर जाएगी तो डाइवर्जेंट, पास आएगी तो कन्वर्जेंट, अगर सेम डिस्टेंस रहेगा तो कंजर्वेटिव मार्जिन। नाउ कमिंग टू द फोर्स। गाइस, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स हमेशा मूव करती रहती है, जिसकी वजह से वॉल्केनिज्म होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं। सो बेसिकली कौन सी फोर्सेस हैं जो इनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? पहले तो है रोटेशन। एज यू नो, द अर्थ इज रोटेटिंग एट इट्स एक्सिस and it takes 24 hours to complete one rotation and it is known as a day, and basically it is rotating in the eastward direction. So guys, हमने देखा था कि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट है वो एस्थेनोस्फीयर पर मूव करती है। तो बेसिकली वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, कुछ क्वालिटीज उसके पास हमारे लिक्विड की भी है। तो बेसिकली अगर एक लिक्विड को आप किसी स्पीड पर घुमाएंगे तो उस पर रखी हुई चीज भी फ्लोट करने लगेगी, तो इसीलिए हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स मूव करती हैं। नेक्स्ट आर द कन्वेक्शनल करंट्स। उसके बाद आते हैं हमारे जियोथर्मल करंट्स।
जिन्हें हम लोग थर्मल करंट्स भी बोलते हैं। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज द मेंटल प्लूम्स। सो गाइज, ये है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन। कंजर्वेटिव मार्जिन में दोनों प्लेट्स में डिस्टेंस सेम रहता है, कन्वर्जेंट में वो पास आती हैं एंड डाइवर्जेंट में दो प्लेट्स दूर जाती हैं। नाउ गाइज, कमिंग टू द थिंग कि कैसे कन्वर्जेंट मार्जिन पर होती है डिस्ट्रक्शन, मतलब कन्वर्जेंट इज द डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। गाइज, होता क्या है कि जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ओशनिक प्लेट पास में आती हैं, टकराती हैं, तो हमारी ओशनिक प्लेट बहुत ज़्यादा हैवी है, तो वो क्या होता है कि नीचे की तरफ बेंड हो जाती है, वो क्रम्बल होती है, डिस्ट्रॉय होती है एंड वहां पर एक जोन बन जाता है जिसे बेसिकली बोला जाता है बेनियोफ जोन। सो जब ये ओशनिक प्लेट हमारी डिस्ट्रॉय होती है तो वहां पर बनता है मैग्मा एंड वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कन्वेक्शनल करंट्स के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर वॉल्केनिज्म भी होता है। सो गाइज, जो सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन होता है वो बेसिकली हमारा कन्वर्जेंट मार्जिन पे ही होता है। एंड हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे हमारे ट्रेंचेस पर बेसिकली हमारा जो सी फ्लोर था वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, वो भी तो एक तरह की कन्वर्जेंट मार्जिन ही थी, क्योंकि वहां पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट पास में आ रही थी, इसलिए वहां पर कन्वर्जेंट मार्जिन थी। लेकिन वहां पर डिस्ट्रक्शन होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव जोन। सो दोनों के टकराने पर हमारी ओशनिक प्लेट नीचे की तरफ बेंड होगी, क्रम्बल होगी, डिस्ट्रॉय होगी, बनाएगी बेनियोफ जोन एंड उसमें बनने वाला है हमारा मैग्मा। एंड मैग्मा की वजह से वहां पर आएंगे कन्वेक्शनल करंट्स, जिनकी वजह से बेसिकली होता है वॉल्केनिज्म। नाउ कमिंग टू द थिंग कि हमारी डाइवर्जेंट मार्जिन होती है मतलब कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। गाइस, हमने रिजेस में देखा था कि कैसे जब दो क्रस्ट आपस में दूर जा रही थी तो उनकी टेल के साथ वहां पर अटैच हो जाता था मैग्मा, जिसकी वजह से सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा था एंड द एज ऑफ द रॉक्स एट द रिजेस वर लेस देन द एज ऑफ द रॉक्स एट द ट्रेंचेस। सो बेसिकली यही होता है कि जैसे वहां पर जो हमारी क्रस्ट थी वो आपस में दूर जा रही थी, तो वहां पर बेसिकली डाइवर्जेंट मार्जिन बन रही थी, लेकिन वहां पर हमारी सी फ्लोर कंस्ट्रक्ट भी हो रही थी, इसलिए हम लोग उसको बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। मतलब कंस्ट्रक्टिव मार्जिन पर बेसिकली गाइस फिशर टाइप ऑफ इरप्शन होता है, जिसकी वजह से वहां पर हमारे वॉल्केनिक कोन्स, प्लेट्यूज एंड हमारे आइलैंड्स की फॉर्मेशन होती है। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जहां पर डाइवर्जेंट मार्जिन होती है वहां पर होती है कंस्ट्रक्शन। सो गाइस, सी के केस में होता है डी एंड डी के केस में होता है सी। नाउ कमिंग टू द कंजर्वेटिव मार्जिन। गाइस, हमने कंजर्वेटिव मार्जिन में देखा कि दो प्लेट्स में डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, वो बेसिकली एक दूसरे को रब करते हुए आगे निकल जाती हैं। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अगर दो चीजें रब करती हैं एक दूसरे को तो वहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि अर्थ की क्रस्ट में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं एंड इसकी वजह से यहाँ पर होता है अर्थक्वेक। लेकिन गाइस, वो शैलो फोकाई होता है, उस फोकस की जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी नहीं होते। तो हमने देखा कि हमारी कन्वर्जेंट मार्जिन होती है डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, डाइवर्जेंट होती है कंस्ट्रक्टिव मार्जिन एंड हमारी कंजर्वेटिव मार्जिन पर आते हैं शैलो फोकाई अर्थक्वेक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कन्वेक्शनल करंट्स। गाइज, आपको पता है कि जो ठंडी चीज होती है वो हैवी होती है एंड जो गर्म चीज होती है वो लाइट इन वेट होती है। ऐसे ही इसीलिए ये होता है कि हम लोग पहले बकेट में गर्म पानी डालते हैं एंड देन ऊपर ठंडा पानी डालते हैं अगर हमें उसको मिक्स करना हो, क्योंकि गर्म पानी ऊपर उठेगा क्योंकि वो लाइट इन वेट है एंड हमारा ठंडा पानी नीचे जाएगा क्योंकि वो कंपैरेटिवली हैवियर है। सो ऐसे उनकी मिक्सिंग हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ हमारी अर्थ में होता है। गाइस, जब भी कोई दो प्लेट्स टकराती हैं तो एक प्लेट डिस्ट्रॉय होती है, उसका कुछ पार्ट जब डिस्ट्रॉय होता है तो वहां पर मैग्मा बनता है। लेकिन गाइस, आपको पता है कि जो अर्थ के अंदर मैग्मा है बहुत डीप है, तो वहां पर टेम्परेचर 800 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अपर पार्ट में है वहां पर जो मैग्मा है उसका जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली कम है, जो कि हमारे इंटरनल ऑफ द अर्थ से बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह से होता है हमारा कन्वेक्शनल साइकिल शुरू।
मतलब वो ठंडा मैग्मा नीचे जाता है एंड वो गर्म मैग्मा ऊपर आता है। एंड जब वो गर्म मैग्मा ऊपर आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर होती है वॉल्केनिज्म। तो ऐसे जब हमारा जो मैग्मा है वो रोटेट करता है एक कन्वेक्शनल साइकिल में, सो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमारी प्लेट्स में होती है मूवमेंट। Now coming to the next type of force that is responsible for the motion in the plate tectonic. तो गाइस इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मल करंट्स के बारे में। गाइस क्या आपको पता है कि एनर्जी मूव करती है फ्रॉम द हाई टेम्परेचर एरिया से लो टेम्परेचर एरिया की तरफ। मतलब अगर एक तरफ हम लोग रूम की कोई कैंडल जला दें या फिर हीटर लगा दें तो वो बेसिकली दूसरे कॉर्नर तक तो जाती है ना, तो ऐसे डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी होती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे अर्थ के इंटरनल में होता है, क्योंकि कोर में तो प्रेजेंट है रेजिडुअल एनर्जी, तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन क्रस्ट का टेम्परेचर है कंपैरेटिवली लेस, तो यहाँ पर थर्मल करंट्स की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से हमारी प्लेट्स मूव करती हैं। एंड गाइस मेंटल प्लूम्स बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारा मेंटल है पार्ट अर्थ का, तो उसमें बेसिकली हमने देखा कि एस्थेनोस्फीयर है एंड लिक्विड एक जगह पे स्टेबल तो रह ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमारा अर्थ तो रोटेट भी करता है। तो अगर कोई चीज रोटेट करेगी उसमें लिक्विड प्रेजेंट है तो लिक्विड फ्लो करेगा। एंड जैसे कि हमारी लिथोस्फेरिक स्लैब्स प्लेट टेक्टोनिक्स उस लिक्विड पर प्रेजेंट है, तो बेसिकली उनकी मूवमेंट होती है। एंड दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर दैट इज समवेयर बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड, सो इसे बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर। नाउ गाइज कमिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स। गाइज जैसा कि हमने देखा कि अगर ये मैग्मा हमारे अर्थ के सरफेस पर आएगा तो इसकी कूलिंग होगी, सॉलिडिफिकेशन होगी, एंड अगर ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो यहाँ पर बनने वाले हैं रॉक्स। सो गाइज जो रॉक्स हमारी अर्थ के अंदर बनते हैं उन्हें बोला जाता है इंट्रूसिव रॉक्स। एंड गाइज अगर वो बहुत ज्यादा डीप बनते हैं तो उन्हें बोला जाता है प्लूटोनिक रॉक्स। लेकिन अगर वो हमारे सरफेस के पास बनते हैं तो उन्हें बोला जाता है हाइपरवेसल रॉक्स। नाउ कमिंग टू द एक्सट्रूसिव रॉक्स। गाइस एक्सट्रूसिव रॉक्स का मतलब जो रॉक्स हमारे अर्थ के सरफेस पर बनते हैं। मतलब अगर तो मैग्मा हमारे अर्थ के अंदर ही कूल डाउन हो गया, कंप्रेस हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, तो वो बनाएगा इंट्रूसिव रॉक। एंड अगर उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है तो प्लूटोनिक रॉक्स बनेंगे। लेकिन अगर सरफेस से थोड़ा ही नीचे है तो हाइपरवेसल रॉक्स बनेंगे। लेकिन अगर वो मैग्मा अर्थ के सरफेस पर आकर कूल डाउन हो रहा है तो वहां पर बनते हैं हमारे एक्सट्रूसिव रॉक्स। सो गाइस बेसिकली हमारा हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होता है। थर्मल मतलब एनर्जी, टेम्परेचर। तो बेसिकली अगर हमारे ओशियन में बेसिकली हमारे ओशियन की क्रस्ट तोड़ फोड़ कर मैग्मा ऊपर आए एंड वहां पर वो रॉक्स बनाए, तो ऐसी जगह को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोथर्मल वेंट। वहां से बेसिकली एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा। मैग्मा जब अर्थ के सरफेस पर आएगा तो वो धीरे धीरे कूल डाउन होगा, सॉलिडिफाई होगा, एंड वहां पर हमारे रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। एंड गाइस जो रॉक्स हमारे मैग्मा के ठंडे होने पर बनते हैं उन्हें बोला जाता है इग्नियस रॉक्स। हम लोग इन रॉक्स के बारे में बहुत डिटेल में जानने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइस सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन क्या होता है। गाइस जैसा कि हमने देखा था कि कैसे जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकराती हैं तो हमारी जो ओशनिक प्लेट है वो नीचे की तरफ बेंड हो जाती है, क्रम्बल होती है एंड डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे बनता है वहां पे बेनियोफ जोन और मैग्मा, जो कि हमारे कन्वेक्शनल करंट्स के कारण नीचे चला जाता है एंड हॉट मैग्मा ऊपर आ जाता है। तो गाइस बेसिकली वहां पर जो हॉट मैग्मा होगा उसमें बहुत एनर्जी होने के कारण वो हमारे कॉन्टिनेंट के क्रस्ट को तोड़ फोड़ के बाहर आ जाएगा, वहां पे हो जाएगा वॉल्केनिज्म। एंड वॉल्केनिज्म में जो भी मैग्मा बाहर आएगा उसकी होगी सॉलिडिफिकेशन एंड वहां पर बनेंगे हमारे इग्नियस रॉक्स। सो ऐसा वॉल्केनिज्म जो आता है बेसिकली हमारे कॉन्टिनेंट की क्रस्ट को तोड़ फोड़ कर बाहर, तो उसे बोला जाता है सेंट्रल टाइप ऑफ एरप्शन। एंड ये बेसिकली गाइस देखा जाता है हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। नाउ कमिंग टू द फिशर टाइप ऑफ इरप्शन। गाइस इसमें क्या होता है कि जब दो ओशियनिक प्लेट आपस में दूर जाती हैं तो उनकी टेल के साथ कुछ हॉट मैग्मा लग जाता है,
जिसकी वजह से वहां पर सी फ्लोर की स्प्रेडिंग होती है। वो मैग्मा बेसिकली धीरे धीरे कूल डाउन होना शुरू होता है, जो कि दो डाइवर्जेंट मार्जिन के बीच में होता है, एंड वहां पर हमारे इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं। जैसे कि ये मैग्मा है जो हमारा फॉल्स, क्रैक्स और फिशर्स से बाहर आता है, तो इसे फिशर टाइप ऑफ इरप्शन बोला जाता है। गाइस, होता क्या है कि जब दो प्लेट्स दूर जाती हैं तो वहां पर फॉल्ट्स बनते हैं, क्रैक्स बनते हैं, एंड उन्हें हम लोग फिशर्स भी बोल सकते हैं। तो जब मैग्मा वहां से बाहर आता है, उन फिशर्स से बाहर आएगा, तो उसे बेसिकली बोला जाता है फिशर टाइप ऑफ एरप्शन, एंड यहीं पर हमारे न्यू सी फ्लोर की फॉर्मेशन होती है। So guys, this is basically the distribution of the plate tectonic of the earth. लेकिन गाइज हमें पता है कि वीनस भी है हमारी ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, तो इसलिए वहां पर भी कुछ ना कुछ प्लेट टेक्टोनिक जैसा है, एंड लेट्स सी इन फ्यूचर, क्या पता उसकी प्लेट टेक्टोनिक के बारे में भी हमें पता चले एंड हम लोग उसके बारे में भी स्टडी करें। सो गाइज, जितनी भी प्लेट टेक्टोनिक्स हैं उन्हें हम लोग बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो आपको पता ही है कॉन्टिनेंटल, एंड दूसरी है ओशनिक। लेकिन अगर हम लोग उन्हें साइज के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें तो बेसिकली दो टाइप की प्लेट्स हैं, एक है मेजर प्लेट एंड दूसरी होती है माइनर प्लेट्स। सो गाइज, मेजर प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो होना चाहिए नियरली 50 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हमारी प्लेट टेक्टोनिक का इतना एरिया है तो उसे बेसिकली बोला जाता है मेजर प्लेट ऑफ द अर्थ। एंड ऐसी कौन सी प्लेट है? पैसिफिक प्लेट, जो कि बेसिकली 20% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस बनाती है, एंड इट इज द लार्जेस्ट प्लेट ऑफ द अर्थ। उसके बाद आती है हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। तो गाइस, पहली थी हमारी ओशनिक प्लेट, उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट हमारी है कॉन्टिनेंटल प्लेट, उसके बाद आती है हमारी एंटार्क्टिक प्लेट, तो ऑब्वियसली ये ओशनिक प्लेट होने वाली है। अफ्रीकन प्लेट, यहाँ पर कॉन्टिनेंट है तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी। उसके बाद है हमारी यूरेशियन प्लेट, क्योंकि यूरोप और एशिया हमारे यूरल माउंटेन्स के कारण जुड़े हुए हैं, तो इस प्लेट को बोला जाता है यूरेशियन प्लेट। उसके बाद है जिस प्लेट पर प्रेजेंट है हमारा प्यारा इंडिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नाउ कमिंग टू द माइनर प्लेट्स। गाइस, बेसिकली जिन प्लेट्स का सरफेस एरिया हमारे 50 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से कम होगा, ऐसी प्लेट्स को बोला जाता है माइनर प्लेट्स। ऐसी कौन सी प्लेट्स है? हमारी है फिलिपियन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, उसके बाद आती है हमारी इंडियन प्लेट एंड अरेबियन प्लेट, कैरिबियन प्लेट, नज़का प्लेट, कोकोस प्लेट, एंड लास्ट इज द जुआन दे फुका। सो गाइज, जो ये हमारी जुआन दे फुका है, दिस इज द स्मॉलेस्ट टेक्टोनिक प्लेट ऑन द अर्थ। ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है। हमने सबसे बड़ी प्लेट देखी थी पैसिफिक प्लेट, एंड हमारी जुआन दे फुका है सबसे स्मॉलेस्ट प्लेट। So guys, if you enjoyed my video, then do like, share and subscribe. Thank you.